Good morning, dear students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. Today, in this video, we will explain the status of agricultural sector on the eve of independence. What was our status of agriculture? What was India's agricultural status during the period of independence or at the time of independence? We will discuss the status of India's agriculture in this video. আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কি আলোচনা কৰিম স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতৰ কৃষি খণ্ডৰ বিষয়ে কৃষি খণ্ড কেনে ধৰণৰ আছিল সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এণ্ড দিস ইজ ফ্ৰম দ্য পাৰ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমি অন দ্য ইভ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ওকে Okay, so India's agriculture sector had the following features on the eve of independence. Basically, the state of agriculture means we are going to discuss the main features or the main characteristics of agricultural sector on the eve of independence. The first one is the first characteristics of the features of agriculture on the eve of independence: stagnation, स्थविर. जो ब्रिटिश का ज़माना पे मतलब ब्रिटिश पीरियड और द कॉलोनियल पीरियड पे क्या होता था, हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बेसिकली स्टेगनेंट था और उसका जिसका ग्रोथ रेट क्या था, स्लो ग्रोथ रेट था. और ये भी बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर दैट टाइम क्या था, एग्रीकल्चर प्राइम मतलब ऑक्यूपेशन था, प्राइम स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्यूपेशन था, या मेनली लोग जितना भी लोग होता है बेसिकली सब क्या होते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होता था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता था. अबाउट 72% जो टोटल लेबर फोर्स जो कंट्री का है वो बेसिकली कहाँ पे रहता था, एग्रीकल्चर पे. और 72% ऑफ द लेबर फोर्स लिव देयर लाइफ और लिवलीहुड और अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर. And that time the agriculture contributed 58.7% in the national income during that period, or on the eve of independence the agriculture contributed 58.7% in the national income, and while 72% of the total workforce earn their livelihood from agricultural sector. But the growth of the agricultural sector was stagnant or the slow growth rate. Why it is slow growth rate? Because Indian farmers used to produce solely and exclusively for self consumption. Basically nowadays also you can see that the farmers are producing goods and producing or crops for their own consumption. So during that period also the most of the farmers are solely produce the goods and services for or self consumption, crops for self consumption. So Indian farmers mainly concentrated on the production of food crops. That time during the time of independence Indian farmers mainly give importance on the production of food crops. The use of agricultural inputs like the irrigation facilities, then modern techniques of production was very little. Irrigation facilities, chemical fertilizers, modern technique was very little. And उस टाइम पे क्या होता था, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट स्टेगनेंट था उसका मेन वजह क्या था, हमारा इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं था, हम लोग प्रॉपर केमिकल यूज़ नहीं करते थे, या फर्टिलाइज़र प्रॉपर यूज़ नहीं करते, या जो मॉडर्न टेक्निक भी हमारा पास नहीं था, हमारे पास बेसिकली आउटडेटेड टेक्निक था. उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो था. यहाँ पे दो फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश का ज़माना पे या कॉलोनियल पीरियड में जो जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट स्लो था. एक होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर्स इन द हैंड्स ऑफ ज़मींदार. टिलर्स मतलब द पर्सन द हो बेसिकली कल्टिवेट्स. टिलर मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे हम लोग पावर टिलर बोलते हैं ना, पावर टिलर मतलब ट्रैक्टर जिससे हम लोग माटी क्या करते हैं, माटी को हल जे बोलते हैं हम लोग, हल बोलते हैं. तो यहाँ पे टिलर मतलब पर्सन को वजह जो डायरेक्टली क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं. वो सब क्या होता था, एक्सप्लॉइट होता था ज़मींदार के पास, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर था उसका ग्रोथ रेट स्लो था. और दूसरा क्या होता है, आउटडेटेड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की वजह से भी क्या होता था, उस टाइम हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो कम था या ग्रोथ रेट स्लो था. नेक्स्ट वन इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. कम उत्पादन और कम उत्पादनशीलता. दैट टाइम उस टाइम ब्रिटेन का ज़माना पे क्या होता था, कॉलोनियल पीरियड पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और द कॉलोनियल रूल, इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उसका प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर भी कम था और प्रोडक्टिविटी कम था. मतलब पर एकड़
या पर हेक्टर ऑफ लैंड या पर बिगास ऑफ लैंड पे जो भी प्रोडक्शन था वो भी बहुत स्लो था। एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स दिया है, जैसे क्या होता था उस टाइम इकोनॉमी में 508 लाख टन्स क्या था फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया था 1947-48 में, और ये जाके 2012 में कितना हुआ, ये 2574 लाख। तो देख सकते हो मतलब कितना प्रोडक्शन उस टाइम कम था या प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम था हमारा एग्रीकल्चर का। एंड ये प्रोडक्टिविटी किस लिए कम था उसका बहुत रीज़न है। रीज़न एक क्या है, द कॉलोनियल पीरियड में जो लैंड सेटलमेंट था, लैंड सेटलमेंट जो लैंड सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम था। या जो लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो भी डिफेक्टिव था, करेक्ट नहीं था। उसकी वजह से क्या होता था, हमारा जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हुआ था। और भी क्या कारण हो सकते हैं, ये तो एक लैंड टेन्योर डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम की वजह से या लैंड सेटलमेंट की वजह से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कम था। और हो सकते हैं टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ किया था क्योंकि उस टाइम फार्मर या कल्टिवेटर्स इतना मतलब रिच नहीं था, वो लोग बेसिकली पूर था, तो पूर होके इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो लोग को, और मैक्सिमम इलिटरेट्स था। इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं था, मैंने पहले पॉइंट में भी बोला, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम था उस टाइम एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं था। देन फर्टिलाइज़र हम लोग कुछ निग्लेजिबल यूज़ करते, मतलब नाम मात्र, मतलब नाम की वास्ते हम लोग फर्टिलाइज़र उस टाइम यूज़ करते थे ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसके लिए क्या होता था, हमारा जो प्रोडक्टिविटी भी है वो कम हुआ था। किसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो, एक तो ब्रिटेन का जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम, डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम, लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, जलसिंचনৰ যিটো ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয়, তাৰপিছত যিটো আমি মডাৰ্ণ বা উন্নতমানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, বা ৰাসায়নিক বা কীটনাশক দ্ৰব্য বা ৰাসায়নিক সাৰসমূহ আমি সেই সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ কি আছিল, উৎপাদন আৰু উৎপাদনশীলতা দুটাই কি আছিল সেই সময়ত কম আছিল। দ্য নাম্বাৰ 3 ইজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইজ ফ'ৰ্চড কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ, কৃষিৰ বাণিজ্যকৰণ। কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ মিনছ শিফ্ট ফ্ৰম গুড crops to cash crops, goods crops to cash crop. Indian farmers were forced to shift to commercial crops like indigo in particular. तुम्हारा 12 का चैप्टर में तुम लोग शायद इंग्लिश पे, जनरल इंग्लिश पे इंडिगो मिला है। फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, राइस और व्हीट प्रोडक्शन के लिए ब्रिटिश ने इस तरह पॉलिसी बनाया था, मतलब फोर्स किया था फार्मर्स को या कल्टिवेटर्स को फोर्स किया था क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करे या कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करे, जैसे इंडिगो एक है उसका पार्टिकुलर। जिससे बेसिकली क्या करते थे, हमारा जो फार्मर्स या कल्टिवेटर्स थे वो लोग राइस या व्हीट प्रोड्यूस करते थे, बट ब्रिटिश ने उसको फोर्स करके कमर्शियलाइजेशन करके इंडिगो जैसे या कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया था। उसकी ये भी एक कारण है। और फार्मर्स वेर गिवन हायर प्राइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, जो मतलब ट्रेडिशनल जैसे राइस और व्हीट प्रोड्यूस को उतना इतना प्राइस नहीं दिया था, जो क्या करते कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो वो सब प्रोड्यूस करते थे और कमर्शियल क्रॉप्स उसको ज़्यादा पैसा देते थे इंग्लैंड। इसकी भी एक कारण है, किस लिए, यहाँ पे एक मैंने एक ये दिया है, टेबल दिया है जहाँ पे तुम प्रोडक्शन देख सकते हो। जैसे हम लोग 1947-48 में जो प्रोडक्शन था, अभी 2018, 17, 18, 19, 20 उसका हिसाब से तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्शन, राइस, व्हीट, क्या क्या है, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, ये सब प्रोडक्शन अभी देख सकते हो। ये रिसेंट डाटा है 2021 का हिसाब से ये है। सो और पहले हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत कम थे, ठीक है। और एक क्या था, फर्स्ट के फीचर्स हम लोग को क्या मिला, ग्रोथ रेट बहुत कम था, स्टेगनेंट ग्रोथ। नेक्स्ट वन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम। थर्ड वन क्या है, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन पॉलिसी, मतलब ये जो ट्रेडिशनल या राइस और व्हीट प्रोड्यूस करते हैं हमारा कल्टिवेटर्स या फार्मर्स, उस टाइम उनको फोर्स करके जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो प्रोड्यूस करने के लिए वो लोग क्या क्या फोर्स किया था। यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स व कैश क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश क्रॉप्स मतलब दोज क्रॉप्स व्हिच कैन बी दोज आर easily marketable, or those crops which can be easily sell in the market. For example, the jute, cotton are example of cash crops, and the crops which are grown by producer to earn profit, you can sell in the market, उसको बोलते हैं बेसिकली कैश क्रॉप। सो ये डेफिनेशन कभी कभी आता है, व्हाट इज कैश क्रॉप। নগদ শস্য বুলি কয়, যি শস্য কি কৰা হয় আমি বিক্ৰীৰ কাৰণে বা বজাৰত বিক্ৰীৰ কাৰণে বা বজাৰৰ বাবে কি কৰোঁ, উৎপন্ন কৰোঁ, তেনেকুৱা শস্য কি বুলি কয়, নগদ শস্য বুলি কোৱা হয়, কেশ ক্ৰপ বা নগদ শস্য, যেনেকৈ কপাহ, মৰাপাট, জুট বুলি কোৱা হয়। ওকে, দেন নেক্সট ফিচাৰ কি, হেভিলি ডিপেণ্ডেঞ্চ অন ৰেইনফল, বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। দ্য ডেট অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৱাজ
highly vulnerable. Agriculture was heavily dependent in rainfall. No efforts were made by the British rulers to develop permanent means of irrigation. During that period, or during the time of independence, or during colonial period, our agriculture was totally depends upon rainfall or the monsoon, because British government made and no, they didn't make any kind of efforts to give the irrigation facilities to the farmers. उस टाइम क्या होता, ब्रिटेन ने हमारा फार्मर्स को ये कोई परमानेंट सोल्यूशन इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं दिया था. तो बेसिकली या कम्प्लीटली जो हमारा फार्मर्स था वो रेनफॉल का ऊपर डिपेंड होता. कब रेन होगा उसके बाद जाके क्या कर सकते, क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते खेत में. तो इसका ऊपर बहुत डिपेंड हुआ था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ ब्रिटेन ने नहीं दिया था. जो कॉलोनियल रूलर थे, मतलब जो ब्रिटिश थे, वो लोग ने नहीं किया था. যে ব্ৰিটিছসকলে বা কি কৰিছিল, সেই উপনিৱেশিক কি কৰিছিল, ৰাজত্ব কালত কি কৰিছিল, ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক যিটো কৃষি সেই মূলতে কি কৰিছিল, বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আছিল. কোনো ধৰণৰ স্থায়ী জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কৰা নাছিল, যাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিল, কৃষিৰ অৱস্থা বহুত শোচনীয় আছিল. नेक्स्ट वन, लैंडलॉर्ड एंड टीनियन रिलेशन. जो लैंडलॉर्ड और टीनियन था, लैंडलॉर्ड मतलब द ओनर्स ऑफ द लैंड, और जो टीनियन क्या था, जो लोग क्या करते हैं, लैंड को मॉर्गेज पे लेके, सपोज मेरा पास लैंड है, ठीक है, लेकिन मैं कल्टीवेट नहीं करूँ, मैं दूसरों एक बंदा को दे दूँगा कि तुम कल्टीवेट करके उसके जाके प्रॉफिट में हिस्सा लूँगा 50%, जो तुम मुझे कल्टीवेट करके या क्रॉप्स प्रोड्यूस करके उसका 50% देना, तब जाके क्या होगा, वो आदमी टीनेंट होगा. या जो मेरा पास अगर लैंड है तो मैं लैंडलॉर्ड. तो लैंडलॉर्ड और टीनेंट का बीच क्या था, जो रिलेशंस थे वो ठीक नहीं था. मतलब लैंडलॉर्ड ज़्यादातर करके टीनेंट फार्मर्स को ज़्यादातर करके एक्सप्लॉइट किया था उस टाइम. यहाँ पे एक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनर्स ऑफ द लैंड दैट इज़ कॉल्ड लैंडलॉर्ड were not the actual tiller of the soil. जो लैंडलॉर्ड था वो कल्टीवेट नहीं किया था, कि टिलर नहीं था. टिलर क्यों नहीं था, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता था. एंड दे वेर क्रॉप शेयर्स एंड सेल्डम शेयर्स द कॉस्ट ऑफ आउटपुट. दे ऑलवेज रिमाइंड इंटरेस्टेड टू कलेक्ट मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स. वो मैंने बोला भी था, मतलब वो लोग खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे, लेकिन वो लोग दूसरों को देते थे प्रोड्यूस करने के लिए. उसका जो क्रॉप्स बैठा होगा वो शेयर करेगा, वो परसेंटेज शेयर करके लेगा. तो इस टाइम क्या होता था, दोनों का बीच जो रिलेशन थे वो ठीक नहीं था उस टाइम. तो ये हालत था हमारा एग्रीकल्चर का, और उस टाइम एग्रीकल्चर का ये सब क्या था, स्टेटस था. सो बेसिकली ये जो आज का डिस्कशन है, इससे ये पता चलता है जो हमारा एग्रीकल्चर उस टाइम क्या क्या था. एक तो था हमारा जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था वो स्लो था, स्टेगनेंट ग्रोथ रेट था. एक हैवीली डिपेंडेंस ऑन रेन में था, रेन का ऊपर डिपेंडेंस था, हैवीली डिपेंडेंस ऑन रेन. और एक क्या था, फोर्स टू कमर्शियलाइजेशन. ब्रिटिश ने फोर्स किया था कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए. देन जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी आज के कंपेयर में, या आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रोडक्शन है उसका कंपेयर में, उस टाइम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम थे. और जो लैंडलॉर्ड और टीनियन का जो रिलेशन था उस टाइम, लैंडलॉर्ड टीनियन बेसिकली कल्टीवेशन, लैंडलॉर्ड कल्टीवेट नहीं करता था, टीनियन कल्टीवेट करता था, और उन दोनों का रिलेशन भी ठीक नहीं था उस टाइम. ओके, ये हालत था हमारा क्या होता है उस टाइम एग्रीकल्चर का. सो फ्रॉम टुडेज डिस्कशन दीज आर द क्वेश्चन दैट मे कम इन योर एग्जाम. व्हाट इज कैश क्रॉप्स, नगदी शस्य की, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नगदी शस्य की, স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতৰ কৃষিৰ স্থবিৰৰ কাৰণসমূহ কি আছিল, স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতৰ কৃষিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ বৰ্ণনা কৰে. ओके, टिल दैट थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस्ट्री या फॉरेन ट्रेड का क्या हालत था उस टाइम इंडिपेंडेंस पे और डिस्कस करेंगे. ओके.